Hello students, welcome. This is class 10th, chapter number 3, metals and non-metals. In the previous two videos, we had gone through the physical and the chemical properties of metal and non-metals and also the difference between the two. In this video, we will concentrate on how do metals and non-metals react. So, have a big smile on your face and a positive attitude. Let's begin. And you are with Hardeep Singh. So let's begin with the 9th class. This is the electronic configuration, valence and the valency chart of the various metals. And also in the lower section, when they got the negative charge, they are non-metals, because non-metals mostly form the anions and they acquire the negative charge. However, the metals lose the electron and have positive charge, so they form the cations. We had gone through this particular concept in the 9th class. From this concept, that whenever there is a need of electrons more than the valence electron, mostly the atom loses its electron. They give up the electrons and got the positive charge. However, when they require less electron than the valence electron, valence is 5, it requires 3 more, so requirement is less than 5, so they gain the electron and attain a negative charge. So they are the anions, other are the cations. In the metal and non-metal, as they have the cation and the anion, they attract each other and they form the ionic bonds. So from the previous discussion, we got the point that metal and non-metal combine with each other by ionic bond. क्या कहा कि जो metals होती हैं इनमें ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, देती हैं. दे गिव अप द इलेक्ट्रॉन एंड गॉट द नेगेटिव चार्ज, सो दे फॉर्म, याद रखिए, मेटल्स गिव अप द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज एंड दे फॉर्म, दे आर नोन एज केटाइंस. तो उनको हम क्या बोलते हैं, केटाइंस कहते हैं. इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, दे गेन द इलेक्ट्रॉन, सो दे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, दे हैव नेगेटिव चार्ज, सो एनायन इज फॉर्म्ड. तो ये बात हम पहले पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को देती हैं इसलिए इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैटायन बना लेती हैं. नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये एनायन बनाते हैं. अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में कंबाइन करके आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं. कैसे, फिर वही बात आ गई. Metal usually lose the electron to form cations. Non-metal gain the electrons to form the anions. तो यहां से ये क्लियर हो गया है. So the opposite charges means negative and positive. Cation and anion attract each other and form the ionic bond. So how the metal and non-metal attract each other? अब कभी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर ये रहे आपके पास 3 पॉइंट. अगर कहता है how do metals react with the non-metals, तो आप यही लिखेंगे कि metals form the cations and non-metal form the anion. Opposite charge ions attract each other and by the ionic bond the compounds are formed. So in this way new compounds are formed by the ionic bond. Now to the next point, what is the property? जब हम property किसकी ionic bond की different पढ़ेंगे तो कौन कौन सी properties रहती हैं. One is the physical nature. First property is the physical nature. And what is the physical nature? Ionic compounds are solid and some, ठीक है, याद रखिए, and hard somewhat. थोड़े से हार्ड रहते हैं, ज्यादा नहीं हार्ड होते. इतना भी नहीं सोचना है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होंगे. They are solid and somewhat hard because of the strong force of attraction between the ions. ये नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो कंपाउंड बनता है वो अक्सर सॉलिड होता है लेकिन हार्ड कम होता है. एग्जाम्पल है नमक, तो आप सबने देखा होगा कॉमन साल्ट NaCl.
Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में। तो क्या है ये फिजिकल नेचर में NaCl क्या है, सॉलिड है, राइट। दूसरा पॉइंट जो है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होता है। हमने मेल्टिंग पॉइंट तो पढ़ा है ना, टेम्परेचर एट विच द सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, और बॉइलिंग में द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड टर्न इनटू द गैस स्टेट, और एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनका जो MPBP है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है, ये हाई क्यों होता है, क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आंसर आएगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो हमने भी पढ़ा किसके बीच में। अगर मैं सोडियम की बात करता हूं, यहां ध्यान से देखिए, एटॉमिक नंबर कितना 11 है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या बनेगी 281, पढ़ा ना हमने KLm। तो मैं अगर सोडियम को बनाता हूं तो मैं सिर्फ लास्ट का इलेक्ट्रॉन रखूंगा, मैंने ये इलेक्ट्रॉन रख दिया, राइट। और दूसरी तरफ क्या चीज आई मेरे पास, क्लोरीन आई है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन है 287, राइट। तो क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है, पढ़ा था ना 8 पूरे करने हैं, और इसको ज्यादा है कि ये गायब कर देगा ये, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, इसके पास आ जाएगा। अब Na ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Na के ऊपर क्या आ गया 1+ का चार्ज आ गया। लेकिन यहां कितने थे 7 और एक और आ गया 8, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, प्रोटॉन उतने ही रहे, सो क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेंगे, और इस फोर्स के कारण ही इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। दैट्स वाई इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो कैसे लिखेंगे, ये तो आपको समझाया, लिखना कैसे है। जब भी आपको कंपाउंड है ऐसे बनाना है, किसी ने बोला आयनिक कंपाउंड बना के दिखाओ, तो पहले उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, फिर उसकी क्या लिखनी है कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर जो उसका बैलेंस शेल है उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखने, और वहां से कितने इलेक्ट्रॉन उतर गए हैं वो शो करना, और उसके ऊपर चार्ज लगा देना, राइट। तो क्या आएगा, द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, सो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, राइट। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई डज द आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं और पेट्रोल में नहीं घुलते हैं, डीजल में नहीं घुलते हैं, क्यों। तो क्या लिखेंगे हम, बिकॉज वाटर इज पोलर इन नेचर। Ionic compounds are generally soluble in water because water is polar in nature and like dissolve like. Like dissolve like क्यों लिखा है, क्योंकि NaCl में भी आयन थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वाटर के अंदर वैसे देखेंगे अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, दैट इज 2 and 6, राइट। तो हम ये नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखिए, हम Kl की बात कर रहे हैं तो 6 करेंगे हम, 1 2 3 4 5 and 6। और उधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। लेकिन अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इसके क्या है, फ्री रहते हैं, इसलिए ये इसके ऊपर क्या करते हैं, पावर क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। तो यहाँ ये लोन पेयर की तरह काम करते हैं, तो ये H को थोड़ा सा इधर को बेंड कर देते हैं, राइट। सीधा होने के बजाय H कहाँ आ जाता है, इस तरफ आ जाता है। देखिए पहले ऑक्सीजन ने क्या कहा, यहां ऑक्सीजन ने इसके साथ शेयर किया, हम थोड़ा सा पिछले में पढ़ चुके हैं कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड की बात है, तो यहां इसने इसके साथ शेयर कर लिया, बोला तू बीच में रख यार, बॉन्ड बन जाएगा, तू बीच में रख लिया, एडजस्टमेंट तो हो गई। इसका हम जानते हैं हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है, इसके 2 ही होते हैं लास्ट में, ठीक है, लेकिन इसके गिनेंगे तो 8 पूरे हो जाते हैं, यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे। लेकिन बाद में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, खाली बैठे हैं बिना बॉन्ड के। ये क्या करते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे क्या आता है डेल्टा 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सॉरी उल्टा हो गया मेरे से, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देते हैं, इसलिए हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे डेल्टा 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पोलर हो गया, इसके ऊपर भी आयन बन गए
और NaCl के अंदर भी आयन है, इसलिए इसके अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाता है। बट इन द पेट्रोल या केरोसिन में ये बात नहीं होती। क्लियर? अगले पॉइंट पे चलते हैं। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ड्राई स्टेट। देखिए जब तक तो NaCl ड्राई है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है तो इसमें आयन नहीं है। अगर इसमें आयन नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्लियर? हम जानते हैं करंट क्या है, इट इज अ फ्लो ऑफ आयंस, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयन बने ही नहीं तो चलेगा कैसे? बट इन एक्वस स्टेट, एक्वस मीन जब इसको हमने पानी में घोल दिया, और इन मोल्टन स्टेट, या ये पिघला हुआ होगा, ठीक है, इट इज कंडक्टर। ध्यान रखिए कब कंडक्टर होगा, या तो एक्वस स्टेट में होगा या मोल्टन स्टेट में होगा, तभी जाके क्या बन जाता है, इट इज, तो जाके ये क्या हो जाता है, कंडक्टर बन जाता है। क्लियर? अब क्वेश्चन है क्यों, वाई इन द मोल्टन स्टेट द आयनिक कंपाउंड्स बिकम द कंडक्टर। तो आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज इन द मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अपोजिट आयन इज ओवरकम ड्यू टू हीट। जब हमने इसको पिघला दिया तो जिस फोर्स के कारण ये दोनों आपस में जुड़े थे, Na पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए और Cl नेगेटिव चार्ज खींचा हुआ था, हमने गर्मी दी, ये दोनों दूर अलग अलग हो गए। जब दूर हो गए, जब इकट्ठे थे तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को खत्म किया, नेट चार्ज कुछ नहीं शो हो रहा था, NaCl पे नेट चार्ज 0 था, ना ये पॉजिटिव था ना ये नेगेटिव था। बट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयन से क्या हो गई, ओवरकम कर गई, एंड द आयन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और जो आयन थे वो फिर से अपने आप को दिखाने लग पड़े कि मैं पॉजिटिव हूं और तू भाई क्या है, नेगेटिव। तो जब आयन आ जाते हैं तो दीज आयन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज इन द मोल्टन स्टेट। अगर क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द ड्राई स्टेट बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, व्हाई? तो आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज इन मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम, ठीक है, बिटवीन अपोजिट आयन इज ओवरकम ड्यू टू हीट, सो दे बिकम द कंडक्टर। अभी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से एक और बॉन्ड फॉर्मेशन करके देखते हैं Na2O की, दैट इज सोडियम ऑक्साइड की। आप Na को लेंगे एंड Z इज 11, इट मीन्स इट हैव इलेक्ट्रॉन 11 एंड प्रोटॉन 11। अब हम इसकी क्या करेंगे बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे KLM में। 2 कैसे लिखेंगे, 2 पहले में, बाकी बच गए 9, फिर 8, फिर 1, तो क्या हो गया 2 8 1। देन हम ऑक्सीजन की लिखेंगे, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, Z, इट इज 8, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 है, प्रोटॉन भी 8 है, बट इट इज 2 and 6, राइट। अब हम इसका सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की स्टडी करेंगे, मीन्स हम क्या देखेंगे, ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, टेकन अंडर कंसीडरेशन। तो मैंने क्या लिखा, Na के साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन हैव 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। नाउ आपको पता है क्या रूल लगेगा, यहां क्या लगेगा, ऑक्टेट रूल लगेगा। ऑक्टेट मीन्स 8 चाहिए, तो यहां से ये एक तो ये दे दिया, राइट। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन वी नीड 1 मोर नाइट्रोजन। एक और नाइट्रोजन लिया और उसका भी इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। नाउ 6 7 8, राइट। नाउ इन द केस दिस Na get the positive charge, lower Na also get the positive charge, and this oxygen after getting 1 2 3 4 5 6 and this is 7 and this is 8, तो ये दो जहां से आए 8 पूरे हो गए, तो दिस ऑक्सीजन विल गेट, वो विल गेट कितना चार्ज, -2 चार्ज। तो इसके ऊपर नेट चार्ज 2 नेगेटिव आया, राइट। अब हम इसको कंबाइन कर देंगे, कर सकते हैं या नहीं, आसान है ना आपके लिए। कैसे आसान करें, लिखेंगे कैसे इसको, ऐसे लिखोगे आप, Na नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर, पॉजिटिव, लेकिन कितने हैं ये 2, और साथ में क्या आएगा ऑक्सीजन, और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा 2 नेगेटिव। अब हमारा कंपाउंड बन गया Na2। तो जो अगर हमारे पास 2 अलग अलग एलिमेंट रहते हैं तो उनको ग्रुप हम क्या करते हैं, बाद में एक करके नेट उसको शो कर देते हैं। कितने थे, 2 यूज किए हैं। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं, राइट। ये रखा बेटे, दैट इज MgO। कैसे करेंगे आप, Mg को ले लेना पहले, एटॉमिक नंबर कितना होता है Mg का, इट इज 12, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 12, तो 2 8 2, इसके ऊपर 2 लगाएंगे। फिर ऑक्सीजन
एटॉमिक नंबर इज 8, इलेक्ट्रॉन इज 8, 2 एंड 6, इसको 2 की जरूरत है, वहां से 2 उठा के दे देंगे, Mg पे 2 प्लस, इस पे 2 नेगेटिव, कोशिश कीजिएगा हो जाएगा। ये मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो आप आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है इसको स्टडी जरूर कीजिएगा। एंड आफ्टर दैट ऑन द अपोजिट पेज देयर इज अ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स, राइट। जो बच्चे आगे जाके क्विज की तैयारी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इन चीजों को पक्का याद कर लीजिए। एक बात याद रखिए कि जो आपको कंप्लीटली डिटेल में बताया जा रहा है वो इसलिए कि आप जो बच्चे आगे जाके जिंदगी में कंप्लीट एग्जाम के लिए बैठेंगे, दिस इज बून फॉर देम, ये उनके लिए वरदान है। ना तो क्वेश्चन टाइम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम की, ऑक्सीजन मैग्नीशियम बनाइए ना हमने अभी। क्या दिखाना होता है? सिर्फ जो बैलेंस के इलेक्ट्रॉन है वो दिखाने। सोडियम का 1 दिखाएंगे, ऑक्सीजन कितने दिखाओगे? 6, मैग्नीशियम के 2। देन यहाँ पे व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड, इन कंपाउंड में कौन कौन से आयन होते हैं? जैसे मैग्नीशियम कितना 2 प्लस, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 माइनस है ना, 2 नेगेटिव, सोडियम सिंगल प्लस। वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? अभी हमने पढ़ा ना ये तो वहीं से पूरा आंसर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।